Yeah. So good evening, everyone. Welcome to this wonderful, wonderful journey of gratitude. And we are going to read this book, The Magic by Rhonda Byrne. Those who have not heard about it and we've just come here because of some inquisitiveness, or maybe you've heard from someone about it. So this is like an awesome, awesome book. It will change your thought process. It will change how you have been living for the past many years. Okay, those who have done it, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं. Those who have not done, you'll be like amazed. And if you have seen the Secret movie, you might have got an inkling of how we have been living without knowing, without anyone having told us, कि कैसे करना है, कैसे बोलते हैं अपन, और क्या हमारे लाइफ में होता है. बहुत सारी ये बातें आपको लगा होगा नहीं, हम लोगों ने तो बचपन में सुनी है, हमारी बुक्स में ये लिखा है, किसी से हमने उपदेश में सुना है, कोई प्रवचन में सुना है, सब कुछ वही बातें हैं. बट हमको उसको अपने डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बुक ने बहुत अच्छे से हम लोग को बताया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज वाई दिस एन अमेजिंग बुक. इसने 28 डेज में कैसे आपके लाइफ में पूरा यू टर्न कर देगा. यू टर्न इज व्हाट, कि हम इधर देख रहे हैं और एकदम यू टर्न इज लाइक एकदम उल्टा डायरेक्शन हमारा थॉट प्रोसेस हो जाएगा और हमारी लाइफ वैसी हो जाएगी. ओके, सो एनीवन वांट्स टू शेयर कि जो एकदम ही न्यू है, आप कैसे आए हैं, माने कैसे आए इन द सेंस लाइक क्या सोच के आए हैं. हैव यू सीन द सीक्रेट मूवी, व्हाट आर यू थिंकिंग? So if you, it has to be an interactive session. Someone will read, okay, a few chapters, and then we'll discuss about it. कुछ queries होंगे, कुछ practices हैं, ऐसे करके the journey will continue. Okay, so anyone has a question before we start? No? Okay, cool. ठीक है, so someone would like to introduce Shweta. आप कहाँ से हैं, since your camera was the first one which got on? Hi everybody. Hi Priya. I'm from Noida. Okay. And yeah, one of my I am completely new to this thing. I've never ever heard about this, but it's just that recently I've started practicing, meditation, and have been just trying to look for, search different kind of things. So got in touch with energy, universe, and manifesting affirmations. So I've just got used to such words in past 3-4 months. Okay. So one of my friend shared this link. So initially it was the day link. So because of my work hours, I was not able to do that. And when I just checked in the morning that it is going to happen in the evening, I just jumped into it. I'm so glad that I could make this, and definitely I'll be there throughout the journey. I'm looking forward to listening to it, understanding, and trying to implement it in my life, hopefully. Okay, definitely. If you're just thinking that you are implementing, you are definitely going to implement it. Okay, just keep giving me this 1 hour daily. Okay, I'm very this session is very cool. You can ask the people who have been here for many months now. Okay, some people I think have done 4-5 sessions of this book. If not with me, then with other people also. So I'm sure you are going to have such an amazing time that you will keep doing the practices. You will keep seeing the magic happening in your life. Okay. Sure. Yeah. So anyone else? Thank you and welcome. Yeah. Thank you. Yeah. So someone else wants to share, or should we start the reading? आई थिंक कई लोगों के कैमरे ऑफ हैं आज ठीक है, सब लोग आज देख रहे होंगे कि क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या मैजिक होने वाला है कि हमारा कैमरा तो ऑन हो जाएगा कि अपना अपना ही, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, ओके. सो वी विल जस्ट डू द रीडिंग ऑफ दिस बुक chapter by chapter each day. Yeah, and I request you, or I should not be requesting, it is up to you, but I will strongly recommend that you buy this book. Okay, it's like I'm sure everyone has bought this book, जो पहले कर चुके हैं, और अगर आपने अभी नहीं खरीदी है तो जब तक आएगी, so I have shared the PDFs in the group, आप उसमें से पढ़ सकते हो. ठीक है, so we will be sharing, I'll be sharing the screen, someone will read over here, and we'll be discussing, and just you can just see how the thing is. Okay, so anyone else has a query? No? Okay, so since today is an introductory session, it is a little longer, so we will start with the reading, and from tomorrow onwards we will interact a little more, get to know each other a little more. Okay, कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, what are your expectations from this session. ठीक है, so I think I'll need someone to nominate to read the chapter. Who is it? You have to, yes, every day. आज हम लोग warm up नहीं करेंगे, warm up भी कर लें. Sangeeta ji and Tarani, what do you say? कर लेते हैं. ठीक है, so before
सी अब सब लोग आए हैं, Yes. आज तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है. यस, वार्म अप स्कूल ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खड़े होके हम लोग को टो टचिंग करनी है कि नेक बेंडिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बट समथिंग वी डू सो दैट वी गेट अ लिटिल फ्रेश. वी फॉरगेट दैट वी हैव ग्रोन अप और वी आर स्टिल किड्स. आई डोंट नो, आई एम 25 एट हार्ट, सो आई एम सेइंग आई एम 25. आप लोग भी अपनी अपनी एक एज चूज कर सकते हो. ठीक है, एंड व्हाट वी डू इज वी जस्ट डू अ लिटिल फन थिंग. आज आपको खाली देखना है तो देख लो, कल से तो करना ही पड़ेगा सबको. ठीक है, एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट. तो क्या करना है हमको, तरनी और संगीता जी, कोई आप बताओ क्या करना है. यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ. कैमरा ये वाला कैमरा ऑन करने में ही मजा है. 10 little fingers. Yes, 10 little fingers. Yeah. So everyone knows this poem क्या? 10 little fingers, 10 little toes. 10 little toes. One little nose. क्या? Sorry, 2 little ears and 1 little nose. It's been a long time. Yeah. So I think I dropped my earring, but it's okay. So yeah. So Tarvi, let's start. Fine. 10 little fingers. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. So every day we have to do this. This was just अभी सबने बता दिया. It is 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Okay, and we have to do it little fast, and we have to say it also a little loud. Okay, this is something which is getting your blood करके थोड़ा सा कुछ अच्छा लगेगा, 100% लगेगा. So let's start with this. आज आप मेरे बात सुन के कर लीजिए. ठीक है, एंड नेक्स्ट दिन आप एकदम करोगे. आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि करें कि नहीं करें, बट सिंस पीपल हु हैव डन इट आर सेइंग कर लेना चाहिए, सो वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके, सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 10 little fingers, 10 toes, little ears toes, and 1 little little ears nose. and 1 little 10 nose. little fingers, 10 little Fingers, toes, 10 little 2 toes, little ears and 1 little 1 nose. little nose. 10 fingers, 10 little Fantastic. Okay, wonderful. Yes. Okay. So thank you everyone for being a sport and doing it. जो लोग आज अनम्यूट पे कर रहे हैं, सॉरी म्यूट पे कर रहे हैं, कल आपको अनम्यूट करके करना ही करना है. ठीक है, एंड विद द कैमराज ऑन. दिस इज द फन. आपको वाली फीलिंग नहीं आ रही आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे? इफ यू वांट वी कैन do like that also, but this is cool. 10 little fingers. So kid wali, wo bachpan wali feeling is more fun. Okay, so we'll do that. So Sangeeta ji, I think you have geared up for reading, or Kavita ji? Yes. Anybody? Kavita ji can read, no problem. No, नहीं, anyone. आज संगीता जी आप पढ़ लीजिए. I have disturbance at my place थोड़ा सा. Tomorrow's अच्छा. session I can read. ठीक है. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. So first of all, I will just share the screen and everyone can see it. Yeah. Sangeeta ji, you can see it. Yes. Just 1 second. Little. I'll make it a little proper. Just. That's why I've worn the specs also so that I can read. Yes, thank you. So this is the book, The Magic by Rhonda Byrne, and the author has written the book, The Secret, The Hero, The Greatest Secret, and a little more journal kind of a books also. So that is why The Secret, Rhonda Byrne, and this book is in the hands of someone cloaks पहना हुआ है, so it could be some बहुत पहले की book है, and there's this sparkling thing happening over here. एंड ये बुक भी बहुत एंशिएंट सी लग रही है. तो ये कौन सी बुक पकड़े हुए हैं, ये जो भी पकड़े हुए हैं, एंड व्हाट इज इट अबाउट? दिस इज द फ्रंट कवर ऑफ द बुक, एंड एट द बैक दिस इज व्हाट इज रिटन. संगीता जी, प्लीज स्टार्ट. एंड संगीता जी, यू हैव टू इंट्रोड्यूस. आई नो यू, बट आप कहाँ से हो, कहाँ से हैं, प्लीज. Yes. Good evening, everybody. I am Dr. Sangeeta Deshpande. I am from Nagpur, and this is for the third time that I'm here with Priya, and it has been an amazing journey. Yeah, thank you. Please start. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes.
Yeah. So for more than 20 centuries, something has been written in the sacred books. So this is the book. This is the sacred book in which some texts were written, and people have been trying to, solve it, thinking of it as a riddle, and trying to decode it. Basically, they are trying to decode it. Okay. So now let's see. Please read. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yeah. So this book is again impartial. Okay. कि कोई भी इसको पढ़ ले, आप कहीं पे भी हो, आप किसी भी पार्ट में हो, आप कैसे भी सोशल स्टेटा में हो, कैसा भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. जैसे एयर, वाटर, आप जो भी सोचिए, जो नेचुरल चीजें जैसे हम लोग को इम्पार्शियली सबको सब कुछ खुले मन से मिलती रहती है हम लोग को, वैसे ही ये बुक पढ़ने से, या ये जो सीक्रेट है, इसको अगर हम लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे लाइफ में वैसे ही चेंजेस आने वाले हैं. इट इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ. बट अभी भी देखिए, इसमें भी एक रिडल है. व्हाई विल इट चेंज योर एंटायर लाइफ? इफ यू फॉलो व्हाट दिस बुक इज टेलिंग यू इन एन इनक्रेडिबल 28-day जर्नी. अगर आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा ये बुक कह रही है, 28 डेज में तो ये हमको सिखा रही है, उसके बाद आप पूरे लाइफ में अगर उसको वैसे ही फॉलो कर रहे हो, तो आपकी पूरी लाइफ मैजिकल होने वाली है. जैसा सीक्रेट मूवी में, आई एम अज्यूमिंग आपने देख ली सबने सीक्रेट मूवी. नो? देखिए, ठीक है, वील कम टू दैट आल्सो व्हेन. या. सो दिस इज द बुक, एंड वी विल नॉट बी रीडिंग दिस. This is the publisher. This book was written in 2012, और आज आप देखिए, आज हम 2021 में पढ़ रहे हैं उसको, और अब जाके और लोग इसको पढ़ते चले जा रहे हैं. लाइक पीपल, अभी तो बहुत बहुत लोगों के लाइफ में इसको पढ़ के, इसको फॉलो करके क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में. Yeah, please start. By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, circa 3,000 to 5,000 pieces. Yeah. So by this means you'll acquire the glory of the whole world. अभी हमने पढ़ा one word changes everything. And ये book, अब ये जो Emerald Tablet है, Emerald Tablet क्या है? किसी को पता है? हाँ, इसका मतलब आपने सीक्रेट नहीं देखी है. ओके. सीक्रेट मूवी अच्छा देखी भी होगी तो क्या पता नहीं चला होगा कि उसमें वो एमरल्ड टैबलेट है. आई जस्ट सीक्रेट मूवी में आपने देखा था एक एंशिएंट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो छोटी सी ड्रेस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, एंशिएंट टाइप की ड्रेस पहन के वो पर्सन कुछ लेके भाग रहा होता है, ऐसा ग्रीन स्टोन टाइप का, राइट इन द बिगनिंग ऑफ द मूवी. ठीक है. तो दिस इज दैट एमरल्ड टैबलेट. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, हीरोग्लिफिक्स टाइप में या कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो मम्मीज के हाथ में उन्होंने लिख के कुछ कोडिंग उसमें सेट कर दी. दिस इज रिटन ऑन अ स्टोन. ये एमरल्ड टैबलेट है. लोग कहते हैं कि गोल्ड को फिर से बनाना या अमर रहने वाली, ये सारी सीक्रेट्स इसमें लिखी हुई हैं, एंड लोग इसको डिकोड करने में लगे हुए हैं. तो अब ये जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक में, जस्ट 1 मिनट, ये इसमें लिखा हुआ है. ठीक है. Just 1 minute. Just 1 minute. Oh, sorry. Yeah. तो ये इस एमरल्ड टैबलेट में लिखा है, by this means you'll acquire the glory of the whole world. अब ये जो this है, ये क्या है? हाँ, what is this? ये जो this है, it could be any guesses? What is this? कि अगर आपने लाइफ में ये किया तो आपको पूरी दुनिया की ग्लोरी मिल जाएगी. और हम लोग तो सोच रहे हैं कि हमको जो ड्रीम्स हैं वही मिल जाए. मेरे रिलेशन. यस, थैंक यू कविता जी. ग्रैटिट्यूड से आपको दुनिया की ग्लोरी मिल जाएगी, दुनिया की.
ठीक है। और हम लोग अभी अपने लाइफ में इन्हीं सब चीजों में अटके हुए हैं। किसमें? कि मेरा जॉब अच्छा हो जाए, मेरा बॉस मेरे को प्रमोशन दे दे, मेरे को बोनस मिल जाए, मेरी मदर इन लॉ मेरे को अच्छे से ट्रीट करें, मेरे को वो मेरे को मेरा वो फ्लैट मिल जाए, हाँ, मेरे को इस हॉलीडे पे जाने को मिल जाए, मेरे को कुछ ज्वेलरी मिल जाए। हम लोग अभी इन्हीं चीजों में अटके हुए हैं। बट अगर अपन ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं हमारे लाइफ में, तो इससे हमको दुनिया की कुछ भी चीज मिल सकती है। एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। ये नहीं कि आपकी सिर्फ सिटी में आप पॉपुलर हो जाओगे, कि आपकी कंट्री में आप पॉपुलर हो जाओगे, नहीं, पूरे दुनिया में आप पॉपुलर हो जाओगे, या जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। इस एमरल्ड टैबलेट में ये लिखा हुआ है। बट इतना सिंपल है ग्रैटिट्यूड, इतना आप बोले हम तो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर जन को थैंक यू बोलते हैं, हाँ, जो भी हमको कोई सामान देता है हम उसको थैंक यू बोलते हैं। तो क्या ये है ग्रैटिट्यूड? अगर ऐसा है तो हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, स्कूल में भी डांट पड़ती है, नहीं बोलते हैं तो भी सिखाते हैं सब लोग, फिर भी हमारी ड्रीम्स पूरी नहीं हो रही है, एंड ये कह रहा है कि हमको पूरे दुनिया से की ग्लोरी मिल जाएगी। तो ऐसे कैसे? हाँ, तो बट कुछ तो होगा, है ना? तो क्या है ये? लेट्स फाइंड आउट। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. या सो अगेन आप देखिए, ये बुक रोंडा बर्न हमको डेडिकेट कर रही है। किसको? जो रीडर है, जो आपको, जो हम हैं, हम सब जो यहाँ पे इस बुक को पढ़ रहे हैं, हमको डेडिकेट कर रही है। एंड शी इज टेलिंग अस कि ये बुक हमारे लिए एक नई दुनिया ओपन करे, जिससे हमारे जीवन में जॉय आए। शी इज नॉट सेइंग कि आपको रिचेस मिल जाए, आपको लव मिल जाए, ये नहीं कह रही है, जिससे आपको जॉय मिले आपके पूरे लाइफ में। दिस इज व्हाट शी इज विशिंग फॉर अस, ओके, दिस इज व्हाट हर इंटेंशन इज फॉर, ओके, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो वो चाहती हैं कि ये बुक पूरी दुनिया में स्प्रेड हो। आप सोचोगे नहीं नहीं, सब राइटर यही चाहते हैं, पूरी दुनिया में उनकी बुक सेल होए, खूब सारे पैसे मिले, इसीलिए चाहते हैं, पॉपुलर होने के लिए चाहती नहीं। बट शी इज टेलिंग अस कि ये बुक पढ़, इसको फॉलो करके हमारे लाइफ में जॉय आए। दिस इज व्हाट हर इंटेंशन इज। एंड ट्रस्ट मी, आज संगीता जी अगर तीसरी बार ये मैजिक बुक कर रही हैं, वो पावर बुक कर चुकी हैं, कविता जी कर चुकी है, छाया जी अभी आई, लाइक लॉट ऑफ पीपल, and I have already done it many times, okay, not just with in this sessions, but also on my own. I have done it with Ashwin ma'am, with a friend of mine, and I've done it on my own and with so many of you over here. तो ये बुक ऐसी है कि आप एक बार करोगे तो आपको लगेगा कि खत्म, हमको तो और करना है, मेरे को और लाइफ में अपने चेंजेस चाहिए, और मैजिक चाहिए हमारे लाइफ में, ठीक है। और आप सोचिए ना, इसने बुक रोंडा बर्न ने बुक का नाम मैजिक क्यों रखा, ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं रखा? क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने से आपके लाइफ में मैजिक आएगा। बुक का नाम ग्रैटिट्यूड हो सकता था ना, मैजिक क्यों है, द मैजिक क्यों है? कि वो हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड से जो चेंज, हमको जो मैजिक चाहिए, जो अभी हमको लगता है इम्पॉसिबल, दैट इज मैजिक ना, लाइक व्हाट इज मैजिक एज पर यू, व्हाट इज मैजिक? समवन, इट इज नॉट, ऐसा लेक्चर नहीं है ये कि हम बोलते रहेंगे और सब लोग बोलते रहेंगे, नहीं नहीं प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी आल्सो। Priya ji, magic is something which is impossible. ओके, व्हिच इज इम्पॉसिबल, लेकिन हो जाता है। Hogwarts. हॉगवर्ट्स तो ठीक है, बट हमारे लाइफ में अगर हम, तो हॉगवर्ट्स तो नहीं है, ठीक है ना। If we are unexpected change. अनएक्सपेक्टेड, यस। ओके, माने मैजिक मेरे हिसाब से तो ये था। अच्छा, हम लोग गूगल भी कर सकते हैं कि मैजिक क्या है। समवन प्लीज गूगल एंड टेल अस। मैंने नहीं किया गूगल। समथिंग मैजिक, व्हाट इज समथिंग मैजिक? The power of apparently Something which creates wonder, Yes, this is Rupali which ji you or Shweta ji? cannot imagine. Which you cannot Which imagine. you cannot imagine. Okay, and that will happen in your life. Like अगर हमसे पूछा जाए अभी, अगर हम like see, मेरे को तो पता है, तो इसलिए like हम नहीं बोल पाएंगे what will be magical in my life. आपके लाइफ में भी क्या मैजिक होगी? नहीं, मेरे बच्चे का इस जगह एडमिशन हो जाए, दैट विल बी मैजिकल। वो तो पता ही नहीं है, वहां उसका एडमिशन हो जाएगा, दैट विल बी मैजिकल। मेरे को 5 लाख रुपीस मेरी सैलरी हो जाए, ये होगा ना, तो ये एकदम मैजिक ही होएगा। इज दैट मैजिकल फॉर यू? सो समथिंग विच इज अभी आपको लगता है कि आपके स्कोप के बाहर है, दैट इज मैजिक, और वो आपको मिल जाए, तो ये कैसे होएगा? ये मैजिक आपकी लाइफ में कैसे आएगा? दैट इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस। दैट नॉट जस्ट टेलिंग अस, इट इज गिविंग अस द सीक्रेट टू गेट दैट मैजिक हैपन इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स रीड and let's find out the secret. Yeah.
Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There's just the universe and me. Then gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you. Just 1 second, Sudha ji. Acknowledgements. अब acknowledgements क्या होता है? हम लोग यहाँ पे काफी सारे वर्ड मीनिंग भी करते रहते हैं, ठीक है? अदरवाइज हम लोग पढ़ेंगे क्यों? हम लोग अपने आप ही पढ़ लेंगे, है ना? वर्ड मीनिंग जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे. Giving credit. Yes, giving credit. And what is gratitude? Again, giving credit, right? Gratitude क्या हुआ? आप किसी को थैंक यू करे, आपने किसी को एक्नॉलेज किया, दैट इज ग्रेटिट्यूड. या आपने किसी को थैंक यू क्यों किया? मैंने आपको, आप रेस्टोरेंट में गए, आपको किसी ने कुछ भी सर्व किया, आप उसको थैंक यू करते हो, तो माने आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो ना कि हाँ तुमने हमको दिया, हमने देखा एंड हमें उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं. तो अब हर बुक में एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, ठीक है? हम हमारे लाइफ में कितने लोगों को एक्नॉलेज करते हैं? क्या हमारे को जो भी हम जिससे भी इंटरैक्ट करते हैं हमारे लिए, आई थिंक वो भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा बताना, बट आप देखिए रोंडा बर्न हमसे कह रही है एक्नॉलेजमेंट भी आप जब पढ़ेंगे उनका कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट. या एंड शी इज टेलिंग अस, जब वो बुक लिख रही थी तो वो चुपचाप अकेले लिख रही थी. इट्स अ जॉयफुल येट सॉलिटरी वन, कि जो भी इंसान एक बुक लिखता है, आज आप एक मैसेज भी करते हो फोन पे, हाँ, तो आप खुद ही लिख रहे हो, अपने मन में कुछ सोच रहे हो, अनलेस यू नो यू आर डूइंग सम ऑफिशियल मैसेज या किसी को कुछ ऑर्डर करना है, वो छोड़ के आप कोई भी एक मैसेज करते हो तो आपने मन में सोचा और आप लिख रहे हो. तो इट इज एक्चुअली अ सॉलिटरी थिंग दैट यू आर डूइंग, आप अकेले कर रहे हो. हाँ, देयर इज जस्ट द यूनिवर्स एंड मी. यूनिवर्स एंड मी मतलब शी इज टॉकिंग अबाउट द बुक, कि उनके मन से थोड़ी सी वैसी बात हो गई, जस्ट द यूनिवर्स एंड मी, वो लिख रही हैं और उनके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो भी वो लिखना चाह रही हैं, इट इज कमिंग थ्रू द हायर पावर, है ना? एंड आप भी जब मैसेज कर रहे हो तो आपके मन में जो आ रहा है वो आप लिख रहे हो. इट इज अगेन अ सॉलिटरी थिंग, बट ग्रेजुअली द सर्कल बिगिंस टू वाइडन. माने आपने जिसको मैसेज भेजा उसके पास गया, उसने रिप्लाई किया, आपने बहुत जन को मैसेज भेजा तो वो बहुत लोगों के पास चलता चला गया. वैसे ही जब आप बुक लिख रहे हो, आप जस्ट ट्राई टू कोरिलेट writing a message or writing a book, more and more people keep coming. उन्होंने बुक लिखी, ठीक है? अब उसके बाद बुक को किसी ने एडिट किया होगा, किसी ने उसको प्रिंटिंग कराई होगी, वो पब्लिशर के पास होगा, किसी ने बुक का कवर डिजाइन किया होगा, द होल ग्रुप, ठीक है? द फॉलोइंग पीपल वर अ पार्ट ऑफ द एवर वाइडनिंग सर्कल ऑफ क्रिएशन, जिसके कारण ये बुक हमारे पास आई. आज भी जो मेरे पास ये बुक आई है अमेजोन, आज नहीं जब भी आई, अमेजोन वाले से आई, मैंने किसी को पेमेंट किया, फिर वो आई, कोरियर वाला घर आया, यू नो, मेड ने रिसीव किया, फिर मेरे पास आई. तो इट्स अ बिग, माने बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो रोंडा बर्न आज उन सब लोगों को थैंक यू कर रही है. तो अब आप देखिए कि वो कैसे थैंक यू कर रही है. लेट्स रीड. Thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor. Sangeeta ji, should I increase the size or is this okay? हाँ, थोड़ा सा actually. हाँ, yes, I was just wondering, पिछले बार हम लोग थोड़ा सा, just 1 minute, हाँ. Is this okay? जी, perfect. Thank you so much. Yeah. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond's Words, for her straightforward editing approach and probing questions which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Horst and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work, in particular, my sister, Jan Child, who heads up
the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Zeig, Mark Connor, Chi Lee, Peter Byrne, and my daughter Haley. या तो आप देखिए वो हर जन को कितने अच्छे से करें, ये नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया कि उनका, आप देखिए whose behind the scenes work is invaluable, कि उन्होंने इतनी मैजिकल पिक्चर्स इस बुक में डाली, फोटोग्राफर के लिए भी, कलोसल क्रिएटिव टीम, माने आप देखिए वो कितने अच्छे से अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करके अपनी पूरी टीम को थैंकफुल हो रहे हैं, ठीक है। आज हम भी, I'm an interior designer. Sorry, I forgot to mention that. I'm from Calcutta. I'm an interior designer. I live with my mom, my brother, my bhabhi, and my little niece. And अगर आज हम एक काम कर रहे हैं, आप भी अपने अपने लाइफ में देखिए, अगर आप काम कर रहे हो, घर पे हो या जॉब पे जा रहे हो या आप स्टूडेंट हो, आप जो भी कर रहे हो, हमको लगता है सब कुछ हमने खुद ही कर लिया, ओके। बट हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कितना सारा सपोर्ट सिस्टम होता है पीछे जो हमको हमारे काम में या घर पे हमेशा हेल्प करता है। अगर आप जॉब पे हो तो मे बी क्या घर में डेफिनेटली आप जब जॉब पे चले जाते हो तो घर में कोई ना कोई घर का सेटअप देख रहा होता है, मेड होती है आपकी या इन-लॉज होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या हम उन लोगों के लिए इतने थैंकफुल होते हैं? आप जॉब पे भी जाते हो तो वहां पे जो आपका स्टाफ है, आपका बॉस है, जो मैनेजमेंट टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, क्या आप उनके लिए कभी थैंकफुल होते हो? आप कभी उनके बारे में इतना सोचते भी हो? कभी नहीं सोचते होगे, आई एम श्योर। जो लोग नहीं कर चुके, कभी कभार थैंक यू कर दिया, बट कैसे, क्या आपने उनके लिए ग्रेटफुल हुए हैं जैसा ये बुक एक्सपेक्ट कर रही है हमसे? तो ये सब नहीं करें। अब आप ये देखिए कितने अच्छे से एक एक जन को उनके, ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू फॉर दिस दिस दिस, आप देखो एकदम अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके शी इज टेलिंग अस कि हाउ शी इज थैंकफुल टू देम, ओके। सो लेट्स रीड, because we are supposed to do that, we are expected to do that, then only magic will happen in our life. Yeah. Thank you to Angel Martin. No, I skipped it. Yeah. Thank you to my publisher Atria Books and Simon Shooter, to Carolyn Rady, Judith Kerr, Darlene D. Lillo, Twisney Fan, James Pervin, Kimberly Goldston, and Isolde Thorpe. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Villoyas and his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work, and with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time, that indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. आप देखिए तो ये बुक सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने उस ग्रीन टैबलेट से जो लाइन थी उसको एक्सप्लेन किया, नहीं, शी इज ऑल्सो टेलिंग दैट शी हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस, वहां से भी ले। आप जब ये बुक पढ़ोगे ना आपको खुद भी लगेगा कि इट इज नॉट जस्ट साइंटिफिक, इट इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअल, इट इज अ मिक्स, ओके। ये ऐसी बुक है। एंड उन्होंने, और शी इज इवन थैंकिंग, इफ यू जस्ट लुक एट दिस लाइन, उन लोगों को भी वो थैंक यू कर रही हैं जो सेंचुरीज अगो जिन्होंने ये सारी चीजें डिस्कवर की थी, ठीक है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट जब हमारे लाइफ में ये बुक आनी थी। जिनके लाइफ में पहली बार आ चुकी है उनके लिए नहीं, जिनके में अभी फर्स्ट टाइम आई है उनके लिए ये आज ही के दिन ये बुक आनी थी। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में अब से वो चेंजेस आने वाले थे। और जो हम लोग दोबारा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कुछ कम हो गई होगी, तो हम लोग, हमारा सबका ये रिविजन हो रहा है, ठीक है। हम तो हर बार इसीलिए करते हैं बिकॉज आई कीप ऑन वांट टू प्रैक्टिसिंग दिस। अभी हम लोग जब मिलके करते हैं तो एक ना, जैसे अपन जिम भी जाते हैं, घर में आपको बोले ना कि हाँ ठीक है कर लेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डू इट? अपने आप बैठ के नहीं, खड़े होके आप करते हो?
जो लोग जिम जाते हैं, या जब तक एक वॉकिंग फ्रेंड नहीं हो जाता है कि हाँ उसके संग वॉकिंग जानी है, अगर वो नहीं जा रहा तो अच्छा आज छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद चले जाएंगे, 3 दिन बाद चले जाएंगे। डाइट आप लोग कितने बार करते हो और उसको पूरी तरह फॉलो करते हो, कितने जन है? हाँ, तो ये जो हम लोग मिल के ये जो हमारा सेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। प्रैक्टिस की नहीं की, क्या हुआ, अबाउट द लाइन रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, जैसे नहीं आपको एक तो पूरा टाइम हम लोग एक दूसरे को चेयर अप करते रहते हैं काइंड ऑफ, ओके। एंड इसीलिए हम लोग सब लोग वापस वापस करते ही रहते हैं। देयर इज तुलसी हु इज हियर फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ माइंड सिंस नवंबर, वो यहाँ पे है। बहुत आई थिंक और भी जन होंगे, अभी तो और अभी हमने देखे नहीं है, आई विल जस्ट सी वंस द रीडिंग इज ओवर। तो बहुत जन हम लोग इसीलिए बार बार करते रहते हैं, बिकॉज वी इंस्पायर ईच अदर, वी कीप वांटिंग टू हैव मैजिक्स इन आवर लाइफ, ओके। अब ऐसा ही है ना कि आज हमने ब्रश नहीं किया तो आपको लगता है कि कल नहीं करना पड़ेगा, सॉरी आज हमने कर लिया, सॉरी आज अगर हमने ब्रश किया तो कल तो करना ही पड़ेगा ना। तो इट इज लाइक दैट, आज अगर आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर ली, आपकी लाइफ में आज मैजिक आ गया है, ठीक है, तो आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जैसे डाइट, आप हेल्दी फूड आपको रोज ही खाना है, ठीक है। आपने 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, एकदम से चेंज नहीं होगा, बट ग्रेजुअली वो आपका कम होने लगेगा, राइट। ठीक वैसे ही जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में मैजिक आते जाएंगे, ओके। सो लेट्स रीड. So these are the contents that we are coming to. So we'll just quickly read this, Sangeeta ji. Okay. Content. Do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. Day 1, count your blessings. Day 2, the magic rock. Day 3, magical relationships. Day 4, magical health. Yeah. Day 5, magic money. Day 6, works like magic. Day 5, just let's read the topics, okay. Just skip the days, okay, just read the Okay. caption. Yeah. Okay. Works like magic, the magical way out of negativity, the magic ingredient, the money magnet, magic dust, everyone. Magic morning, magical people who made a difference. Make all your wishes come true. Have a magical day. Magically heal your relationships. Magic and miracles in health. The magic check, the magical to-do list, magic footsteps, heart, magic, magnificent outcomes before your very eyes, the magical air that you breathe. The magic wand, cue the magic, magically transform mistakes into blessings. The magic mirror, remember the magic, your magical future, the magic never ends. About Rhonda Byrne, excerpt from The Secret, excerpt from The Power. या तो अभी आप ये जो टॉपिक्स देख रहे होंगे, आपने देखा उसमें सारी चीजें, खाने के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मनी के बारे में, तो ये सारे टॉपिक्स धीरे धीरे रिपीट हो रहे हैं। और 28 डेज में हम लोग एक एक दिन एक एक टॉपिक लेंगे और उस पे हमारे को जो जैसे रॉन्डा बर्न समझा रही है हम लोग उस पे वर्क करते रहेंगे, ओके। सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Do you believe in magic? Yeah. So just one second, let's see the other picture. The book. Yeah. So do you believe in magic? So tell me, how many of you believe in magic? अभी तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल है, बट अगर आप बिलीव करते हो मैजिक में तो वो होता तो है ही. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Krish, how old are you? Okay, ठीक है, तो Krish also believes in magic. Sorry. It's not Krish. It's my son's ID. My phone's battery was discharged completely, so I joined from his tab. My name is Sonia. I'm from Dubai. Okay. I do believe in magic. I mean, मैं बचपन से ही मैंने जब मैं कहते हैं ना, आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो कायनात आपको वो चीज मिल ही जाती है. मैं ये करती थी और मेरे साथ होता रहा है ये, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ या फिर मैं कहीं ना कहीं थैंकफुल रही हूँ किसी के लिए, शायद इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा मैजिकल हो रहा है. बट अभी रिसेंट लास्ट 8 months में आई बिन रेगुलरली नहीं हो पा रहा है बिकॉज मुझे पूरी तरीके से इस बात की नॉलेज नहीं है. बट दैट्स व्हाई आई केम हियर to understand how to do it regularly and properly. कैसे ये किया जाता है. That's why I'm here.
Okay, wonderful. So Thank you. that's it. Okay, I was wondering, oh, there is such a small kid in this session. I have taken one हाँ, kid session also. I have to take some time again. But I was just thinking, oh, who's this young kid? So इसीलिए मैंने पूछा. Okay, so a lot of us Thank- believe in magic. Thank you. And अभी जो ये magic जिसको हम believe करते हैं ना, उससे भी ज्यादा magic होने वाला है हमारे लाइफ में. ठीक है. एंड आप बिल्कुल ठीक चारू जी, आप बोल रहे दिस आई बिलीव इन गॉड्स डूइंग. तो इट इज एवरीथिंग इज गॉड्स डूइंग, एवरीथिंग. बट क्या होता है, हम अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर दिन है तो रात भी है, दोनों ही गॉड की क्रिएशन है. तो हम लोग क्यों बोलते हैं अभी अंधेरी रात है, हाँ कल सुबह रोशनी आएगी. हाँ, तो ये अंधेरी रात भी तो भगवान जी की है. हाँ, तो अब ये जो अंधेरी रात है उसको हमने अट्रैक्ट किया हमारे लाइफ में. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द डे नाइट वाला, बट जिसको हम अपने लाइफ में अंधेरी रात बोलते हैं, उसको जो सैडनेस या नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, तो वो भी गॉड का क्रिएशन है. तो अगर हमने उसको अट्रैक्ट किया है तो वो है. अगर हमने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया हमारे लाइफ में तो वो भी है. एवरीथिंग इज गॉड्स क्रिएशन ओनली. तो अब ये जो मैजिक है, हम जो चाहते हैं लेकिन हमारे पास अभी नहीं है, बट वी वांट इट, एंड वो जब मिल जाता है सो दैट इज मैजिक. वो कैसे मिलता है, दैट इज मैजिक. हम सोचते ही नहीं है कि हमारे को मिल जाएगा, बट सोचते नहीं है, बट वी वांट इट, एंड वो आ जाता है हमारे पास. कैसे आ जाता है? जस्ट बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड. एंड आप अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इट्स लाइक दिस इज अ लॉन्ग रोड. ओके, एंड दे आर ट्रीज. इफ यू नो मेनी ऑफ अस मस्ट हैव बीन ऑन लॉन्ग ड्राइव्स. जब जाते हैं तो ऐसे ट्रीज मिल रहे होते हैं, एंड इट लुक्स सो प्रिटी. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पार्कल ओवर हियर, एंड वी कॉल इट मैजिक स्पार्कल, मैजिक डस्ट, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं यहाँ पे. एंड वी सी देयर इज लॉट ऑफ लाइट ओवर हियर. इस पिक्चर के एंड में आप देखिए तो देयर इज लॉट ऑफ मैजिक डस्ट. तो इज दैट मैजिक? ये जो जर्नी हमारी 28 डे की जर्नी है, क्या ये हमारे मैजिकल चीजों को हमारे लाइफ में लेके आ जाएगी? जो हमारे डिजायर्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, जिनको हम चाहते हैं, वो हमारे लाइफ में मटेरियलाइज कर देगी? इज दैट इट? So if we don't believe in magic, okay, let's see what Rhonda Byrne is telling us. Let me not disclose it earlier. Yeah, so this is the picture. Yeah. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990 writer. Yeah, so Roald Dahl is a children's writer. Okay, he is telling us those who don't believe in magic will never find it. जैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जिसको भगवान में विश्वास है, ऐसी वाली कुछ फीलिंग आ रही है इसको पढ़ के? मेरे को तो आती है जब भी हम ये पढ़ते. जब विश्वास नहीं होगा ना, जैसे बोलते हैं ना, कहाँ है भगवान जी, कहाँ है भगवान जी. मूवीज में देखते हैं आपने, या कोई घर में कोई ना कोई जन होगा जो बोलता है कि नहीं मुझे भगवान में विश्वास नहीं है. तब भी अपन यही बोलते हैं कि जिसको भगवान में विश्वास होता है उसी की चीजें लाइफ में अच्छी होती हैं. ऐसे होता है ना, अपन ऐसे ही बोलते हैं. तो ठीक वैसे ही ये भी कह रहे हैं, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट. क्यों? वो जो मैजिक में विश्वास नहीं करते हैं, वो उसमें लॉजिक लगाते हैं, वो उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो साइंस से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लाइफ में कभी मैजिक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसमें लॉजिक, साइंटिफिक रीजंस कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे. ठीक है, सो सेम थिंग अ चिल्ड्रंस राइटर इज टेलिंग अस. एंड अच्छा, अभी आगे पढ़ते हैं. और सबसे ज्यादा लाइक दैट इज व्हाई आई सेड, जैसे मैंने आपको देखा ना कि क्रिश जैन लिखा हुआ है, तो आई थॉट किड है तो ये तो पक्का ही मैजिक में विश्वास है. एंड चिल्ड्रन बिलीव इन मैजिक. वो सोचते ही नहीं है कि जो बोला है अगर मम्मी पापा को वो नहीं मिलेगा, वो नहीं सोचते, वो तो मिलेगा ही. वो उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है कि ये जो आ रहा है वो कैसे आया, कहाँ से आया. हाँ, आपने बोला कि आप कुछ भी बच्चों को बोलो, दे एक्सेप्ट इट. आपने कहा कि ना कि डॉगी आ जाएगा रात में, एंड दे एक्सेप्ट इट कि हाँ घर के अंदर आ जाएगा. दे डोंट पुट लॉजिक. जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, कैसे आएगा, गेट तो बंद है, खिड़की भी बंद है, कहाँ से आ जाएगा, then we start putting logic. but छोटे बच्चों को आप जो भी बोलो, they accept it. Okay, let's read. Oh, sorry संगीता जी. Sorry संगीता जी, I've muted you by mistake. Okay. Sorry. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would
Just 1 second. It is getting recorded, na? Yes. Yeah. Yeah. You will. Yes, yes. Yeah, recording is on. Okay, ठीक है. Yeah. Tooth Fairy would be coming that night, and you would count the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it, and he never let you down. या तो आप देखिए, छोटे बच्चे अभी आपके किसी ना किसी के घर में थोड़े छोटे बच्चे तो होंगे ही, राइट? आपने देखा होगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कि आपने बोला कि अरे कैसे वो वंडर से देखते हैं कि जैसे बटरफ्लाई उड़ रही होती है तो दे आर लाइक सो अमेज्ड. वो जो लीव्स हिल रही होती है तो उनको उसमें कुछ कुछ दिखने लगता है, ठीक है? तो क्लाउड्स में वो रेनडियर देखते हैं, कितनी सारी उसमें वो चीजें, हॉर्स देख लेते हैं, अपनी फ्रेंड देख लेते हैं, फेरी देख लेते हैं, बहुत सारी इस टाइप की चीजें देख लेते हैं, है ना? तो अब आप देखिए, ठीक वैसे ही क्या हम सारे बच्चे वैसे ही करते हैं. हम लोग हर जन छोटे में ऐसे ही टाइप से बिहेव करता था. ओके, जब हमारा दांत टूटा था, जैसे वो कह रही हैं, आपने बताइए क्या क्या किया था? क्या आपने उसको पिलो के नीचे रखा था? डिड यू डू दैट? या एंड यू एक्चुअली फेल्ट कि हाँ हमको कुछ उसके पैसे मिलेंगे, या आपने उसको मट्टी में दबाया था? व्हाट डिड यू डू? Like we have to ask this question, Gopati. Glad to see you. ठीक है? So I got a little distracted. So tell me, आपने किया था जब आपका दांत टूटा था, या आपके बच्चों का जब दांत टूटा होता है तो आप उसको कहाँ रखते हैं? Anyone? No? Yeah, I did it for my 10-year-old. Last month only, he broke his tooth, and he actually believed that Tooth Fairy came and put the 100 dirhams under his pillowcase. He's Yeah. still that, mindset that, okay, he believes in like, okay, there are Tooth Fairies, there are Santa Claus. Yeah, exactly. जो मम्मा बोलती है, he will believe. हाँ, सैंटा क्लॉज तो हमने छोटे में नहीं विश्वास किया था, बस ये टूथ फेरी वाला तो किया ही था, ठीक है? एंड पेड़ों में कुछ कुछ रसलिंग आवाज आती थी तो भूत भी लगता था उस समय, राइट? इफ यू लगता ही था, लाइक दोनों ही चीजें होती थी, लगता था कि हाँ कुछ फनी चीज है यहाँ पे, और तुरंत विश्वास भी हो जाता था अच्छी चीजों में. सैंटा क्लॉज में तो अभी भी आई थिंक बहुत सारे बच्चे अभी भी बिलीव करते ही हैं. आप लोग उनके लिए सॉक्स में कुछ ना कुछ गिफ्ट डाल के रखते हो, गिफ्ट दे हैंग द सॉक, है ना? और उनको लगता है कि हाँ सैंटा क्लॉज ही आके डाल रहे हैं, और वो सोचते ही नहीं कि एक साल, लाइक हाउ शी इज टेलिंग अस, कि वो एक साथ इतने सारे बच्चों के पास कैसे पहुंच जाता है उस सैंटा क्लॉज का गिफ्ट. हाँ, सो ये सारी चीजें बच्चे विश्वास करते हैं और उनके संग होता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन कर रहा है, but they are doing it. They have this belief. Yeah. So this is what Rhonda Byrne is telling us, that when we believe in magic, it happens to us. और सबसे ज्यादा आपको बच्चों में ही ये दिखाई देता है. They are so free, they are so happy. हर दिन उनके लिए मैजिकली होता है. हर डे वो जब उठते हैं सुबह, they are full of that energy, full of that excitement in their life. So वो कहाँ चला गया? So this is what Rhonda Byrne is telling us, that we have to go back to that. We have to start believing in this magic. Then our life will be amazing. Yeah, please read. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys and personalities. Dreams came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. Yeah. There is Yes, अभी भी यही होता है ना, बच्चे लोग बिल्कुल यही सोचते हैं कि पेट्स आर लाइक पीपल, टॉयज हैव पर्सनालिटीज, है ना? लाइक आई हैव अ 3.5-year-old niece now. She is like this only. Like I have shared many times, but जब वो जंगल बुक देखती थी तो वो मोगली रहती थी और हम बलू रहते थे. माय मॉम वाज माय भाभी वाज बगीरा और हम बलू रहते थे. अब वो कृष्णा देखती है एंड हनुमान देखती है, तो एवरी सेकेंड डे वी आर प्लेइंग हनुमान जी एंड सीता जी. तो शी इज विद द गदा, आई एम सीता जी, देन सडनली आई एम हनुमान जी एंड देन शी इज सीता. तो बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, दे बिलीव इन इट. एंड अभी तो उसका ना परमानेंट एक तो वही हो गया. बाय द वे शी आई हैड टू बाय हर अ गदा आल्सो, ओके, स्मॉल गदा, एंड व्हेन शी इज एंड आई हैव टू डू द तिलक, सम आई थिंक कार्टून में ऐसा आता है कुछ, पूरा उसको हमको वैसे ही तैयार करना पड़ता है. यू हैव टू पुट माय तिलक, लाइनर से उसको तिलक लगाना पड़ता है, एंड शी जंप्स अराउंड एंड शी एंड समटाइम्स आई हैव टू लिफ्ट हर आल्सो लाइक दिस. अब तो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो आई कांट, बट पहले आई हैड टू लिफ्ट हर अप एंड शी वुड सुपरमैन की तरह एक हाथ आगे रहता था, एक शोल्डर पे उसके गधा रहता था, एंड शी वुड हैड टू कैरी हर अबाउट. आप लोगों ने भी ये सब किया होगा. तो ये उन लोगों को पूरा विश्वास होता है कि वही हनुमान जी है, वही कृष्णा है, वही प्रिंसेस है, वही
अब जो भी वो सिंड्रेला बनते हैं कि वो स्लीपिंग ब्यूटी बनते हैं, वो उनको पूरा उसमें विश्वास रहता है, उनके टॉयज के लिए भी खाना होता है. You must have seen all this in your houses, yeah, with the kids. And उनको एकदम विश्वास होता है कि हाँ एकदम ये सब बिल्कुल ऐसे ही सच है. And their heart is so pure, yeah. And अब आप वो कहाँ चला गया? And we went through all that. When we were growing, when we were small, we did exactly those same things. हमारे जो टॉयज होते थे हम उनके संग वैसे करते थे, हमारी जो कॉमिक बुक्स होती थी हम उनमें वैसे विश्वास करते थे. But as we grew, where did we lose that? Okay, so why is it that we want to be with kids? Because we want that magic back in our life. Somewhere, somehow we still believe in that magic. Okay, तभी आपको बच्चों के संग ज्यादा मजा आता है. You want to play with them. No, not when they are crying or upset, but you want to be with them. You want to bring that magic in your life. Yeah, please read. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good and that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. Yeah. अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही है ना, बच्चों के संग खेलना, आप भी उनके संग जब आप छोटे बच्चों के संग आप बात करते हो तो यू ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग इन दैट तुतलाने वाला वॉइस में. डोंट यू डू दैट? हाँ, सो स्वीट एम तो क्यूटी पाए. हम लोग भी ऐसे बोले, वो तो बोल ही नहीं रहा है बच्चा और हम लोग बच्चे की तरह बात करने लगते हैं. तो ऐसा क्या होता है, बच्चे को तो क्या पता कि कैसे बोलना है, बट हम उसके संग वैसे ही बात करने लगते हैं, उसके संग बिल्कुल वही गेम्स खेलने लगते हैं जो वो खेल रहा होता है. बिकॉज समवेयर वी वांट दैट innocence, that excitement, that belief in magic back in our life. Yeah, so please read. Yeah, Sangeeta ji, please unmute. I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you've seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yeah. You may not see. Yeah. So see what Rhonda Byrne is telling us, whatever magic that we believed in as children, it is still there. Okay. But वो छोटे में जो हमको maybe रेनडियर लगता था या टूथ फेरी लगती थी, अब उससे ज्यादा हमारे लाइफ में मैजिक आएगा. क्यों? क्योंकि अब जब हम मैजिक में विश्वास करेंगे, सुप्रीम पावर में विश्वास करेंगे, तो क्या होगा, जो हमको एक्चुअल में चाहिए वो हमारे लाइफ में आने लगेगा. ठीक है. एंड बस हमको उसके लिए करना क्या है, जो हमारा वो बिलीफ इन मैजिक है उसको ही वापस लेके आना है. ठीक है. एंड क्या है, अभी वो आप बोलोगे अभी तो वो चला गया, वो कैसे वापस आएगा, बट धीरे धीरे हम लोग को बुक सिखाएगी, हमको रोंडा बर्न सिखाएंगी स्टेप बाय स्टेप इन द नेक्स्ट 28 days दैट हाउ वी believe, start believing in that magic again. Yeah. You may not see reindeer fly, but you will see the things you've always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you've dreamt of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. या तो अब रोंडा बर्न कह रही है, छोटे में अगर आपको जिसमें विश्वास था कि नहीं सांता क्लॉज आएगा, ठीक है, तो अभी तो आपको पता है सांता क्लॉज नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से आपके मम्मी पापा दे देंगे या आपके फादर इन लॉ दे देंगे या आपका हस्बैंड ही आपके लिए सांता क्लॉज है, बट आपको वो सामान मिलेगा ही. लेकिन वो कौन सा सामान मिलेगा, जो आपको एक्चुअल में चाहिए. आपके संग ऐसा हुआ होगा ना, कभी आपने सोचा है कि अरे मम्मा को फोन करते हैं, या उस फ्रेंड को बहुत दिन से बात नहीं किया एंड सडनली उसका फोन आ जाता है. ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में.
अभी कभी कभी ना कभी तो डेफिनेटली हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अब बोलते नहीं नहीं टेलीपैथी है, इंट्यूशन है, नहीं। वो क्या है, वो आपने सीक्रेट मूवी में देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको फिर से देखना है, ठीक है। आई मीन फिर से नहीं, उनको देखना है। एंड हम लोग ये कैसे हमारे लाइफ में ये चीजें आएंगी, वो इस पूरे बुक ने हम लोग को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको जो चाहिए वो भी आप मैजिकली हम लोग हमारे लाइफ में लेके आ सकते हैं। कैसे, वो भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। जस्ट स्टिक इन दिस सेशन और इन दिस बुक, विच एवर यू फील, जस्ट करते रहना है। एंड जो हमको चाहिए वो सब इस वर्ल्ड में है, सब कुछ है, बस हमारे सामने आना बाकी है वो, ठीक है। क्या Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yeah, so I'm sure all of us here are ready to experience that magic again, or to recharge the magic like many of us. Yeah, and ये कैसे करना है, क्या करना है, जो हमने बुक के फर्स्ट पेज में देखा था, बुक के कवर पे देखा था, वो हमको यहाँ पे पता चलने वाला है। Yeah. The great mystery is revealed. या तो अभी हम भी ये बुक देखेंगे। ये जो बुक का कवर था ये वो ही है। इन्होंने बोला ये 2000 इयर्स पहले जो सीक्रेट टेक्स्ट में लिखा हुआ था, ये वो कोट हम लोग आज यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। The following passage comes from the Gospels of Matthew in the Holy Scriptures, and it was mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yeah, please read. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. या तो ये आप देखिए, बिल्कुल ये कोट पढ़ के ऐसे ही लग रहा है ना। अगर ये कोट हम डिट्टो ऐसे ही पढ़े, whoever has will be given more and he will have an abundance, माने जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहा है कि जो रिच है वो और रिच हो जाएगा, और जो वो पुअर है वो और पुअर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, आपने छोटे में या अभी भी अगर आप बच्चों को पढ़ाते होगे, अपने उनको अच्छे से पढ़ाते होगे, तो आपको लगता, कोई कितने सारे कोट्स नहीं आते हैं, उसमें कुछ कुछ एक एक वर्ड मिसिंग रहता है कि कहत कबीर समथिंग समथिंग, एंड उसमें कुछ वर्ड लिखा नहीं होता है, और फिर बाद में हम लोग उसके मीनिंग में समझ में आता है हम लोग को यहाँ क्या लिखा हुआ है। या गीता में कितने सारे श्लोक ऐसे लिखे हुए हैं कि उसमें कुछ इंडिकेटेड रहता है, बट एक्चुअल में वो वर्ड वहां पे मिसिंग रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड है, दैट इज द क्लू, दैट इज द सीक्रेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कवर। हम लोग को वो पता ही है, हम लोग को बताया था कविता जी ने कि वो ग्रैटिट्यूड है, एंड इट इज एक्चुअली दैट। So let's read this. Let's reread this quote. Yeah. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude will even what he or she has will be taken from him or her. Yeah. By the revelation. Yeah, please read. Then we'll discuss. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were ever. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you're grateful, you will be given more and you will have an abundance. Yeah, तो आप देखिए, ये कोट तो हमने पढ़ लिया कि जो ग्रैटिट्यूड करता है जिस चीज के लिए, उसके पास वो और बढ़ता जाएगा, और जो ग्रैटिट्यूड नहीं करता है उसके पास से वो ले लिया जाएगा। अगर हम इसको ऐसे देखें,
which example do I give? Cooking only, food only, family, yeah. तो आप देखो कि अगर आपने since I don't know many of you, married लोगों की बात करते हैं, आपने अगर हस्बैंड के लिए कोई चीज बनाई, ठीक है, और उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने बहुत मेहनत से बहुत अच्छी सी केक बनाई, ठीक है, एंड बहुत लाइक यू ट्राइड इट एंड आपने बनाया, उसमें मेहनत करके पूरे से आइसिंग की, डेकोरेशन किया, सेट करके पूरा रखा, और बस उसने आया, उसने नॉर्मली खा ली, हाउ विल यू फील? या आई डोंट नो इफ दे आर मोर मेन, विमेन तो यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा है। या आपने अपने बच्चे के लिए कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने बहुत सोच के कुछ एक तो अच्छा सा, बच्चे नहीं, हस्बैंड वाइफ पे स्टिक करते हैं, आपने हस्बैंड के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक अच्छा सा आपने गिफ्ट चूज करके सिलेक्ट करके उसको दिया, एंड उसने कुछ उसको एक्नॉलेज नहीं किया और उसने ऐसे ही रख लिया, हाउ विल यू फील? हाँ, आप पहले तुमको पता है, फील तो बाद में आएगा। आप तुमने बताया नहीं, तुमने गिफ्ट कैसे देखा, पहले तो हम ही लोग पूछने लगते हैं, है ना, कैसा लगा गिफ्ट, साइज ठीक था, कलर ठीक था, इतना मैंने मेहनत किया, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई, दिस इज हाउ वी डू ना, प्लीज दिस इज व्हाट आई डू फॉर माय सिस्टर आल्सो, माय मॉम आल्सो। कुछ गिफ्ट किसी को दिया है तो अगर वो एक्नॉलेज कर देता है तो और ज्यादा लंबी स्टोरी होती है, नहीं करता है तो भी स्टोरी होती है, होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ, इसके पास ये साइज थे, मैंने अपने लिए ये सोचा, तुम्हारे लिए ये सोचा, ऐसा करते हैं। अगर सामने वाला उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, हाउ विल यू फील? विल यू थिंक अगेन टू गिव समथिंग एल्स, आई मीन? या आप केक नहीं, आप नेक्स्ट टाइम क्या एक छोटी सी चाय भी बनाने के लिए बहुत ईगर हो गए? थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। व्हाट से तुलसी, हाँ, है ना, तो प्लीज आपको थोड़ा सा आंसर करना पड़ेगा, ओके, ऑल ऑफ यू, वरना नहीं मजा आएगा। या तो आपकी लाइफ में ऐसा होता ही नहीं, आप किसी को गिफ्ट देते हो और वो बहुत खुशी खुशी इतना एक्नॉलेजमेंट करता रहता है कि आप उसको और गिफ्ट देते रहते हो, राइट? या आप इतना खुशी खुशी उसको रिसीव करते हो कि आपकी लाइफ में और गिफ्ट आते जाते हैं, यही होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आप इस बुक में आते ही नहीं, ठीक है, आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत मैजिकल होती। बट अगर आप यहाँ पे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है, या आप उसको और फाइन ट्यून करने के लिए आए हो, ओके। तो इसमें यह है कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया और आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, एक्नॉलेज मतलब उसने थैंक यू नहीं बोला बेसिकली, ठीक है, या बस छोटा मोटा सा थैंक यू, हाँ थैंक यू, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? तो मेहनत से हमने 2-3 दिन, हफ्तों से सोचा, फ्रेंड से पूछा, मम्मी से पूछा कि क्या गिफ्ट देना है, और उसने कुछ ठीक से थैंक यू ही नहीं किया, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आप उतने एफर्ट नहीं करोगे। फिर अगर उसने थैंक यू ही नहीं बोला तो क्या आप उसको गिफ्ट भी दोगे? नहीं दोगे, है ना। तो क्या होता है, जब आप किसी को वैल्यू नहीं, हम ऐसे बोल देते हैं, अगर आप किसी को वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे आप उसके लिए एफर्ट करना कम कर देते हो, होता है कि नहीं? ऐसा होता है, हाँ, कि आप बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, या जब आपकी एंगेजमेंट हुई होगी, आप बहुत अच्छे से तैयार होके गए, सामने वाले देखा ही नहीं कुछ, तो धीरे धीरे आपका वो तैयार होना कम होता है। क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसे ही नहीं देखता, ऐसे ही तेल लगा के कुछ भी करके आप चले जाते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ? पहले जब आप शुरू में हस्बैंड के साथ घूमने जाते होगे, बहुत अच्छे से तैयार किए, मैचिंग पूरा एकदम टिप टॉप, अब कैसे जाते हो आप? जैसे है वैसे, जैसे है वैसे ही, राइट? तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आपका हस्बैंड आपको उतना अप्रिसिएशन, उतना एक्नॉलेजमेंट, आप बाहर जाओगे, आप बहुत अच्छे से तैयार होके जाओगे, बट आप उसके संग जा रहे हो अगर, तो क्या फर्क पड़ता है, अपना ही तो है, घर की मुर्गी टाइप सी हो, वो भी वैल्यू नहीं दे रहा है, आप भी वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो यही हो जाता है, ये जो कोट है ना, ये हर जगह वैसे ही वैसे एप्लीकेबल है, हमने समझाने के लिए अभी ऐसे किया है, बट इट इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी एरिया। अगर आप अपने जॉब में उतना ध्यान से काम दे रहे हो तो आपको रिटर्न वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। सो वट एवर यू हैव, यू आर अप्रिशिएटिंग इट, आपको वो और बढ़ बढ़ के मिल रहा है। अगर आपके पास जो है उसको आप अप्रिसिएशन या ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो तो वो आपकी लाइफ से कम कम होता चला जाता है, ठीक है। तो यही है कि जब हम ग्रैटिट्यूड से काम करेंगे तो वो हमारे लाइफ में बढ़ता जाएगा या वो कम होता जाएगा, ओके। सो प्लीज रीड। from the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember that God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. या तो देखिए, अब यहाँ पे तो वो और भी सीवली कह रहे हैं। पहले वाले उस कोट में तो कहा गया था कि जो आपके पास है वो ले लिया जाएगा इफ यू आर अनग्रेटफुल, बट कुरान में लिखा है कि और ज्यादा आपको पनिशमेंट मिलने वाला है, कि ये नहीं कि सिर्फ वो हट जाएगा आपकी लाइफ में, आपको पनिशमेंट भी मिलने वाला है,
ठीक है, एंड सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। तो आप देखिए हर जगह यही लिखा हुआ है। सो लेट्स सी कि और कहाँ पे कैसे कैसे लिखा है। दिस बुक इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन, इट इज नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन, बट ये सब जगह का एग्जाम्पल दे रही है और हर जगह यही लिखा हुआ है। ओके, सो प्लीज रीड। It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. या तो ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे वी रीड कौन कौन से यूनिवर्सल लॉज हैं, ये हर जगह हर जन पे ये एप्लीकेबल होते हैं। ओके, सो प्लीज रीड। It's universal law. Gratitude operates to a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. या तो ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे हम लोग जो सोचते हैं वही हमारी, जैसे जैसे लिखा है ना कि लाइक इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। आपने सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें यही कि अगर हम सोच रहे होते हैं कि किसी का कॉल कोई हमसे किसी को हमसे बात करनी है तो उसका कॉल आ जाता है। अगर हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो कि मेरी ट्रेन छूट जाए, उस दिन सारे सिग्नल्स रेड मिल जाते हैं, लगता है कि छूटी जाएगी, और नहीं सोचा होगा और पैसेंजर ने, इसीलिए वो मिल जाती है। वरना कुछ सारे सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जैसा अपन सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही वैसे होने लगता है। और इसके लिए ही आपको ये लॉ समझने के लिए आपको सीक्रेट मूवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छे से ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि रोंडा बर्न ने पहले वो सीक्रेट मूवी बनाई थी, फिर बुक लिखी थी, देन शी रोट दिस बुक। एंड वो बुक और वो मूवी हम लोग हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस बुक में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं, हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं, वैसे ही वैसी चीजें हमारी लाइफ में आती जाएंगी। ठीक है, एंड इट इज एज ट्रू एज यू नो कि एक एक जो हमारे बॉडी में एटम है, एक एक सेल है, वो कैसे कनेक्टेड है, वैसे ही हमारे लाइफ में जो लोग हैं वो कैसे कनेक्टेड है। इट इज ऑल व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग टू आवरसेल्व्स। ओके, या प्लीज रीड। If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. या अगेन, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमारे लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती जाएंगी। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज एन एनर्जी, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जैसी एनर्जी एमिट कर रहे हैं हमारे लाइफ में वैसी ही एनर्जी वापस आ रही है। तो इफ यू आर टॉकिंग लाइक दिस, आप देखिए इसमें कहीं पे भी आपको ग्रैटिट्यूड दिख रहा है, कहीं पे भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब ग्रैटिट्यूड दिख ही नहीं रहा है तो वो कोट क्या है, whoever does not have gratitude will lose whatever he or she has। ठीक है, तो जब हम कंप्लेंट करते जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड का ऑपोजिट इज कंप्लेंट। ठीक है, जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, वो मतलब हमारे उस सिचुएशन में और वो वर्स से वर्स होती चली जाएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। But if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as mental being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. या You will या जस्ट वन सेकेंड, इट इज, अब आप देखिए ये सारी चीजें अप्रिशिएट कर रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं, तो ये आप माने
एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, आप सोचो यही सारी चीजें में हम लोग को बात करनी है आज से, ठीक है। कल से आप नोटिस करना कि आप किस तरीके से बात करते हो, कि आप सोच क्या रहे हो उसमें तो बाद में जाएंगे, कि आप बात क्या कर रहे हो, अननोइंगली व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर स्पीकिंग, ठीक है। तो आप कॉन्सेंट्रेट करके कल देखना कि कल आप कैसे बात कर रहे हो, और कल से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको नोटिस करना है, और ऑटोमेटिक आप अपने को ही नोटिस करना, भी दूसरों को नहीं नोटिस करना है आपको, आपको अपना नोटिस करना है, और उसको आप कैसे चेंज करोगे वो देखना है, ठीक है। एंड वी आर मेटल, एंड जो हमने हमारे लाइफ में अट्रैक्ट किया है, या तो वो मैग्नेट है, बट ऐसा नहीं है, वी आर द मैग्नेट्स, एंड वट एवर वी आर अट्रैक्टिंग, ओके, वो हमारे लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि आप एक मैग्नेट हो, और ग्रैटिट्यूड जैसे आप उसको और अपने मैग्नेटिक पावर को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, ठीक है। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे आपका मैग्नेटिक पावर उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। या You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the greatest scientist, Sir Isaac Newton, discovered. या ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो हम लोगों ने बचपन से सुना ही है ना। जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए, ये सब भी आपने सुना ही होगा। जब क्या ना रास्ते में कंकड़ डालेंगे तो वही मिलेंगे, यू नो, वी हैव हर्ड ऑल दिस सिंस चाइल्डहुड, एंड ये सब बातें सही हैं, ठीक है। एंड ये किस पे वर्क कर रही हैं? सर आइजैक न्यूटन की डिस्कवरी पे। विच इज दैट डिस्कवरी? लेट्स सी। Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. This means that the very action of gratitude sincerely, and the more deep this gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. या तो आप देखिए ये जो लॉ है ये न्यूटन के लॉ पे बेस्ड है। कैसे? एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। कि आप जितने फोर्स के मैग्नेट बनोगे, ठीक है, कैसे बनेंगे आप इतने फोर्स के मैग्नेट? जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये मैग्नेट आपका सिर्फ ग्रैटिट्यूड से स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे? अगर आप जैसे उसी पे आते हैं, आपने केक बनाई, हस्बैंड ने बोला हाँ अच्छी केक है, ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा बोला वाओ कितनी अच्छी केक बनाई है तुमने, ये हुआ। और तीसरा तो ये है कि उसने कुछ बोला ही नहीं। तो आप जैसा वो आंसर कर रहा है आपके मन में कैसी फीलिंग आएगी आप ही बताइए। कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो नो केक नो चाय भी, ठीक है। ठीक ठीक केक, अगर उसने ठीक ठीक अप्रिशिएट किया, चलो उसको अच्छी लगी, हाँ अच्छी बनाई है, थोड़ी सी मीठी ज्यादा है या थोड़ी मीठी कम है, एक ये हो गया। तीसरा वाओ इतनी तुमने मेहनत की, तो आपको लगेगा केक क्या कल तो पूरा 56 भोग बना लेते हैं, ऐसा लगेगा कि नहीं? तो दिस इज व्हाट न्यूटन लॉ इज टेलिंग अस कि जितना डीपली आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ज्यादा। हस्बैंड ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है ना, तो उसको ही तो 56 भोग मिलने वाला है। तो आपको जब कल गिफ्ट मिलेगा या कल आपको कुछ मिलेगा, तो आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे उसी हिसाब से आपको भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज न्यूटन लॉ। और ये सब हम लोग अपने लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं, बट कभी उसको ऐसे समझा नहीं। बच्चे लोग समझ जाते हैं, ठीक ठीक है, कभी कभी हम लोग हमारे मन के लिए भी समझ जाते हैं, बट अब लाइफ में हर चीज के लिए कैसे, सिर्फ हस्बैंड और वो तो नहीं ना, हमको तो यूनिवर्स से ऐसी चीजें चाहिए। ये ग्रैटिट्यूड को कितना ज्यादा हम अपने लाइफ में उतारेंगे, जितना लाइफ में मतलब डेली में कैसे कैसे करेंगे। इट इज नॉट टेलिंग अस टू यू नो बी हिपोक्रेट, ये सब नहीं बोल रहे हमको, ठीक है। वी हैव टू जेन्युइनली फील इट, और ये जेन्युइनली ही आएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, I think we'll just take 10-15 minutes more. I hope that's okay. शुरू के 2 दिन थोड़े से long हो जाते हैं, yeah, sorry for that. Yeah, please read. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced
and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Jainism, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. या तो ये आप Muhammad, खुद पढ़ लेंगे, सॉरी संगीता जी, हाँ ये आपको खुद पढ़ना है, ये हर रिलीजन में एक एक ये लाइन लिखी हुई है एंड इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आप जो भी रिलीजन, इसमें सारे कोट्स लिखे हुए हैं एंड व्हाटएवर वी आर रीडिंग टुडे, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, आज असाइनमेंट है कि ये जो पीडीएफ में ये आपको सारा पढ़ना है। आई विल टेल यू व्हिच आर द पेजेस, आज जो हमने रीडिंग की है वो आपको पढ़ना है अपने आप, ठीक है। तो ये हर रिलीजन में ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। सो वी विल रीड फ्रॉम हियर, हिस्ट्री इज लेटर, या तो अभी तक हमने रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, आई थिंक लेट्स रीड फ्रॉम हियर। व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tecmish, 1768 to 1813, Shawnee Native American leader. या तो जब हम सुबह उठते हैं, आप ये भी देखिए, आप कोई लीडर के बारे में बात करिए, कोई रिलीजन के बारे में बात करिए, जो भी सक्सीड किए हैं लाइफ में, वो सब ग्रैटिट्यूड फॉलो करते थे, वो सब ग्रेटफुल होते थे, वो हर चीज को, लोगों को अप्रिशिएट करते थे, एक्नॉलेज करते थे, ठीक है, जेन्युइनली, माने दिल से करते थे, ऐसे ही नहीं, सुपरफिशियली नहीं करते थे। वो तो हम लोग को भी पता चल जाता ना कि कौन सी मेड अच्छे से बात कर रही है, कौन सी मेड जेन्युइनली बात कर रही है, हम लोग को भी पता चल जाता है। तो ये जो लीडर्स हैं उनको तो और भी पता चलता है, और वो लोग जेन्युइनली करते हैं, तभी वो लोग कहाँ हैं और वहां पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमको कोई थैंकफुल होने का रीजन नहीं मिलता है, ठीक है, रीजन, इफ यू सी नो रीजन फॉर गिविंग थैंक्स, द फॉल्ट लाइज विद योरसेल्फ। बट मेरे को ये पता है कि आज जो भी हम लोग यहाँ पे हैं, वो सबको रीजन पता चल रहा था अभी तक कहीं ना कहीं, तभी ये बुक हमारे लाइफ में आई है, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट में ही कह दिया था कि ये जो बुक आपके हाथ में आई है अभी, वो इसीलिए आई है बिकॉज अब से आपके लाइफ में चेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं। इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। आप पहले जो भी करते थे वो सब अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बट अब आपके लाइफ में और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, एंड आपके लाइफ में मैजिक्स आने ही आने, इफ यू आर डूइंग एज द बुक इज टेलिंग यू। ओके, सो प्लीज रीड। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they have done. Yeah, please read. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. Yeah, तो रॉडावन ने हमको बताया, नॉट ओनली रिलीजन, इवन पीपल हु हैव अचीव्ड ब्रिलियंट थिंग्स, साइंटिस्ट, लीडर्स, वो सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे। और उसमें से उन्होंने एक एग्जांपल दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि वो डेली उन लोगों को 100 टाइम्स थैंकफुल होते थे। 100 टाइम्स, आप सोचो इतने बार इतने लोगों को कैसे मिल जाते थे कि 100 लोगों को थैंक यू होते थे, कैसे होते थे, हम लोग भी पढ़ेंगे। और जो लोग पढ़ चुके हैं, जो ये प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी 100 टाइम्स थैंक यू करते हैं। तो अभी जो लोग ने ये बुक नहीं किया, उनको लग रहा हो 100 टाइम थैंक यू बोलना पड़ेगा, 100 लोग ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग। कपड़ा चेंज कर लो, पहले हम हाथ जोड़ते तुम्हारा, ये लो, ओके, इधर आओ, नहीं होगा, सीधा रखो, सीधा सजा के रखो। सॉरी
यस अपनी प्लीज जो भी कर लो, जो भी मम्मा कह रही हैं, ठीक है? या प्लीज कंटिन्यू. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. या तो हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन का देखा, अब आप आइजैक न्यूटन का देखिए कि वो अभी तो हम लोग क्या होता है थैंकफुल सिर्फ अपने इतने से लोगों के में ही रह जाते हैं. नाउ ही इज टेलिंग अस दैट ही वाज थैंकफुल टू पीपल इवन बिफोर हिम. ऐसा मेरे को ना तब आया था, लाइक यू नो आई एम लाइक अगेन आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर. तो पहले ना हम लोग पेंसिल से पेपर के ऊपर ड्राइंग करते थे जब हमने सीखा था, ठीक है? अब क्या है, तब क्या होता था, क्लाइंट ने बोला एक चेंज करो, मतलब पूरी ड्राइंग फिर से बनाओ, ठीक है? अभी क्या होता है, कंप्यूटर पे बनाते हैं तो कितना इजी हो गया, तो बोलते हैं थैंक गॉड कंप्यूटर पे ड्राइंग करना आ गया है, ठीक है? आपको नहीं लगता ऐसा? यू नो जब कुछ आप पहले लेटर लिखते थे, रिमेम्बर? अब क्या होता है, फटाफट जो भी एडिटिंग वेडिटिंग कुछ भी करते हैं. बट आपका कभी थैंकफुल हुए जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया? किसने बनाया था? बिल गेट्स ना? हाँ, कभी थैंकफुल हुए आप उसके लिए? नहीं हुए. बट आपको लगता है उसके लिए भी होना चाहिए, राइट? तो वैसे ही आइजैक न्यूटन पहले से ये सब थैंकफुल होता रहता था. ही वॉज थैंकफुल टू द पीपल बिफोर हिम जिन्होंने डिस्कवरी की है और उनके बेसिस पे वो आगे चलता चला जा रहा है. तो आप सोचो इस लेवल का जो ग्रैटिट्यूड करेगा उसको वो डिस्कवरीज नहीं करेगा, उसको यू नो नेचर के वो नहीं मिलेंगे सीक्रेट्स, तो किसको मिलेंगे? तो अब आप सोचिए हम लोग को उस लेवल का ग्रैटिट्यूड करना है. कैसे करना है? इट इज वेरी इजी. वी जस्ट हैव टू कीप डूइंग like whatever the book is telling us. Yeah, please read. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yeah, तो अब जैसे बोलते हैं ना कि ये जो बुक है, सॉरी, कि इन लोगों ने तो सब कर लिया, इनको सबकी सीक्रेट पता थी इसलिए वो लोग वहां चले गए. आप सोच रहे होंगे नहीं मेरी तो छोटी सी लाइफ है, मेरे को तो यही चाहिए, बस यही घूमने जाना है, यही अपना घर चाहिए है, फ्लैट चाहिए है, थोड़े से पैसे चाहिए हैं या बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे को उस टाइप का क्या करना है? बट ऐसा नहीं है. ये इस तरीके से जब हम लोग ये अपना प्रैक्टिस करेंगे, ये यही वाली प्रैक्टिस, तो हमको जो चाहिए, ठीक है, कुछ भी चाहिए, आपको डायमंड बैंगल चाहिए है, आपको फ्लैट चाहिए, आपको हॉलिडे चाहिए है, वो आपको मिलेगा. ठीक है, क्या करना है हम लोग को? सिर्फ सिंपल सिंपल ग्रेटिट्यूड करना है एंड इजीली इस बुक में हमको बताया गया. नाउ वी विल क्विकली रीड रॉन्डा बर्न्स स्टोरी and then we'll stop for the day. It's just a 2-page thing, okay? And then I'll tell you what we have to do for tomorrow. Yeah. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes. For sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous, because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures
would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yeah, so we'll stop here today. So what Rhonda Byrne is telling us over here, आपने उनकी लाइफ पढ़ी, कैसी लग रही होगी आपको लाइफ? सिंपल आम इंसान की जैसी लाइफ लग रही थी. डेट्स थे, रिलेशनशिप चैलेंजेस थे, जॉब में थी इश्यूज, हाँ हेल्थ भी अप डाउन थी, जैसी हम लोग की लाइफ है उसी टाइप की लाइफ लग रही थी. बट जिस दिन से उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने बोला उनको जिस दिन से ये सीक्रेट मिली, क्या सीक्रेट? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की सीक्रेट along with other things, but gratitude is the most important thing. उस दिन से उनके लाइफ में उन्होंने बताया कैसे स्टेप बाय स्टेप उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई. एंड मोर देन एनीथिंग एल्स शी इज हैप्पियर एवरी डे. यू नो, इसके पहले वो इतनी हैप्पी कभी थी नहीं. अगर आप गूगल करोगे, आप देखोगे लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वांट टू बी हैप्पी. उनको पता ही नहीं है कि उनको किससे हैप्पीनेस मिलेगी. वो बाहर से मिलेगी, अंदर से मिलेगी, बट आप देखना सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए. दे वांट टू बी हैप्पियर. वो यहाँ ये जॉब मिल जाएगा तब हम हैप्पी हैं, मेरा शादी हो जाएगी तब हम हैप्पी, इस हॉलिडे पे जाएंगे तो हम हैप्पी, बच्चे की शादी हो जाएगी तब हम हैप्पी. वो चेंज होता जा रहा है. बट जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप खुद ही हैप्पी हो जाओगे. और रॉन्डा बर्न बिल्कुल हमसे यही कहनी है, ग्रैटिट्यूड चेंज हर एंड हर होल लाइफ चेंज मैजिकली. एंड आज तो टाइम कम है, अब कल हम लोग जब शेयर करेंगे कि कितने जन यहाँ पे हैं जो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं मैजिक बुक, हम भी कर चुके हैं, हम लोग सब जब शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो चीज आप पहले देखते थे ना कि ग्लास आधा खाली है, हाँ, अब आपको लगता है कि वाओ एक ही सिप है, इससे ज्यादा पीते ना तो हम मोटे हो जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मीठी चाय, नॉट सम ड्रिंक. ओके, सो आप जिस चीज को जैसे देखोगे आपकी लाइफ वैसी ही होने लगेगी. ठीक है, and this is what we will all experience in the coming next 28 days. Okay, so thank you Sangeeta ji for reading for all of us. So Thank you, Priya ji. Thank you. So what we do is, जैसे हमने 10 little fingers पहले किया था, and this book is all about gratitude, and we will end our session with gratitude. अच्छा, before first we'll do the gratitude and then we'll take some questions. Okay, please switch on your camera so that we see who all are here, and let's join our palms, close our eyes, and I will do a little prayer. Up to prayer in the sense like some gratitude. So thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature for bringing abundance in our life. Thank you for the beautiful family, the love and happy relationships that I have with my friends and family. Thank you for their good health and fitness. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. If you have any question regarding the session, regarding what we have to do, please ask. Okay, so you can tell me what are you expecting. आप आए हो यहाँ पे, see अगर आपको किसी को जाना है तो you can go. Okay, but I think we can, you know, आप लोग आए हो, आप if you share कि आप कहाँ से आए हो, क्या सोच के आए हो बुक के बारे में, आपको क्या चाहिए,
चाहिए इन द सेंस लाइक इन लाइफ वैसे नो अच्छा कुछ नहीं नहीं अच्छा what we can do is I can tell you like before I did this magic book I started this magic book exactly a year or maybe 11 months earlier okay and उसके पहले I was a very hyper kind of a person और हर चीज में गुस्सा ना मिस्टेक डांट के आए हैं तो क्लाइंट ऐसे बोल दिया घर आते ही ना मम्मा को आज ऐसा हुआ उसने ऐसे बोल दिया रास्ते में जैम माय ड्राइवर एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक दो माय फ्रेंड्स थिंक आई एम अ वेरी पेशेंट एंड कूल पर्सन बट क्या होता है ना हर जन के दो तीन फेसेस होते हैं ना घर में कुछ होते हैं इन लॉज के यहाँ कुछ होते हैं बच्चों के संग कुछ होते हैं फ्रेंड्स आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव दैट तो मेरा भी जनरल ऐसे ही रहता था कि आए तो लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक दिस हर चीज में मेरे को भी नेगेटिविटी दिखती रहती थी और लगता था कि नहीं मम्मा डांट रही हैं भैया मेरा ऐसा है फ्रेंड्स ऐसी हैं लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक but from the day I started doing this magic book my life has become like a बोलते ना bed of roses हाँ ठीक है उसमें occasional thorns भी आते जाते रहते हैं but bed of roses is like bed of roses ना खाली पत्ती पत्ती गुलाब की पत्ती टाइप्स मेरे को ऐसा ही लगता है और हो भी गई ऐसी my relationship with my mom has become super amazing जो मेरे को पहले लगता था ना कि मम्मा के संग रहते हैं तो कुछ चलता रहता था कि मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है इतनी डिसिप्लिन्ड है ऐसा करो वैसा करो वो एकदम सुपर अमेजिंग हो गया है माय रिलेशनशिप विद माय फ्रेंड्स पहले मेरे को क्लाइंट्स लगते थे अरे पूरा टाइम फोन करते रहते हैं ये करो वो अब मेरे को एकदम वैसा नहीं लगता आई हैव गॉट मोर प्रोजेक्ट्स माय माय फाइनेंशियल्स हैव बिकम सो मच बेटर एंड माय हेल्थ कुछ इश्यूज चल रही थी वो ऐसे लगता है कि नॉर्मल चीजें तो गायब ही हो गई थी नहीं पहले अक्सर सर दर्द होने लगता था कुछ गैस्ट्रिक होता था वो सब गायब हो गया आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया ग्रैटिट्यूड से जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए तो बिल्कुल एकदम मैजिक ही होएगा और जो लोग कर चुके हैं अगर वो लोग भी जो लोग मैजिक बुक कर चुके हैं अगर वो भी शेयर करेंगे कि वो कब से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो बहुत आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कैसे कैसे मैजिक्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में सॉरी आई गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड ठीक है ओके सो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड ये बुक बहुत सिंपल चीजें बोलती है करने के लिए कि मेरे को शुरू में लगा था इतना करना पड़ेगा इतना करना बट वो पता ही नहीं चलता है वो कैसे आपके लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा जैसे शुरू में आपको लगता होगा रोज लाइनर लगाना पड़ेगा हाँ बट अब बताइए आप लोगों को लगता है लाइनर लगाना टास्क सॉरी गाइस भी हैं थोड़े यहाँ पे नॉट लाइनर हाँ आई थिंक कुछ मेन भी होंगे तो वो जो चीजें पहले हम लोग को चैलेंजिंग लगती थी अब वो थोड़ी सी सिंपल ही लगती हैं और अब जैसे बहुत सिंपल चीजें हम लोग को बुक बता रही है और वो कितने सारे आप लोग ऑलरेडी करते भी होंगे कि खाने को आपको थैंक यू बोलना है कितने जन आप लोग खाने के पहले खाने को ऐसे करते हैं लाइक मेनी ऑफ यू कुड बी डूइंग इट ऑल्सो सेम चीज बुक बता रही है तो हाँ मेरे लाइफ में अब हमको लग ही नहीं रहा है कि हम बिना ग्रैटिट्यूड लिखे आगे बढ़ पाएंगे एक दिन नहीं लिखते ना तो मैंने अच्छा नहीं लगता है अगर मिस हो जाता है किसी तरीके से तो इट इज अ वंडरफुल बुक बिकॉज उसने बहुत अच्छे से आपके लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर देगी कि ग्रैटिट्यूड कैसे करना है और कैसे आपकी लाइफ में मैजिक होने लगेगा ठीक है आपके थॉट प्रोसेस जैसे आपने देखा ना उसमें पढ़ा है आई डोंट लाइक माई जॉब माई किड्स डोंट लिसन टू मी ये सारी बातें जो अपन बोलते हैं उसके बदले में जो अपन अप्रिशिएटिंग एक्नॉलेजिंग वाली जब बातें बोलेंगे तो लाइफ आपको अच्छी लगने लगेगी ठीक है उसमें जो वो 2 पैराग्राफ है अब जब आप फिर से वो पढ़ोगे वो आपको पढ़ना है वो लाइक व्हाटएवर वी हैव रेड टुडे यू हैव टू रीड इट ठीक है एंड कल से हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो कल आपको क्या करना है एक लॉन्ग रजिस्टर या लाइक आई हैव स्टार्टेड माय न्यू ग्रैटिट्यूड और एक डायरी हमको चाहिए एक बड़ी डायरी मतलब या आपका रजिस्टर भी हो सकता है या इट कैन बी लाइक अ नोटबुक बेसिकली एक ये साइज की चाहिए रहेगी और एक थोड़ी आपको डिसेंट साइज की चाहिए रहेगी इट कैन बी अ लॉन्ग बुक और अ नोटबुक और एक ये हम लोग को कल से चाहिए रहेगा ठीक है तो आपको कल वो शाम को कल वो लेके आना है बिफोर द सेशन या उसके बाद भी आप लिख के रख सकते हो ठीक है तो ये हमको कल चाहिए लाइक दैट विल बी एंड डोंट आप ये मत सोचिएगा कि कहीं पे भी लिख लेंगे नहीं इट हैज टू बी अ न्यू रजिस्टर और अ न्यू डायरी ठीक है इट शुड नॉट बी कि आपने आगे उसमें हिसाब किताब किया हुआ है और पीछे से आपने उसमें ये सब लिखना शुरू कर दिया इट शुड नॉट बी लाइक दैट ठीक है इट शुड बी अ डेडिकेटेड डायरी आई विल नॉट आस्क यू टू राइट ओवर हियर ओके आपको बाद में अकेले शांति से ही लिखना है बट यू हैव टू अरेंज दैट
Okay. So Shikha ji, I think you raised your hand if you have a question. Otherwise, I'll ask someone who has already done the session, to share your experience and about gratitude, about the sessions, how magic changed your life. Yeah. Hmm? Someone please volunteer. Otherwise, I can, ask the people I know. I'll share. Yes, please introduce yourself and say. So happy to see you, Dharni. Yeah, I am also very happy to be here. Yeah. And thank you. So I'd written in my dreams that I wanted this specific job. And um, last time it's shared that my interviews had gone very well. Hmm. I did 5 levels of interview, and my friends have made a lot of fun of it. कि हमारे prime minister के लिए भी do only one election, and for a bank job you do 5 levels. So, but today was my first day of that, and it was amazing. Wow, congratulations, Dharni. Awesome. Awesome. And Okay. it's after forever that I went for a job for working, and I don't feel tired even now. Like I feel full of energy. So it's just lovely. And I'm just so glad we are starting these sessions also today. It's just made my day very special. Okay, thank you and congratulations. Thank you. So you have to tell us how long have you been doing gratitude practice? So you have to tell the new ones now. I've done the book twice virtually, Hmm. and this is the first time I'm doing it with the actual book in my hand. So I'm very excited about that. Okay. It took me a long time, but I've done the practice for about 3 months, Okay. 3.5 months Okay. into Awesome. the practice. Okay. And one more thing, and you remember you said that I do a lot of gratitude for money. I genuinely feel very grateful for it. I also got a side assignment, and there was a note that I had made in January of the amount of money. And at that time, I wasn't doing magic book, but I just seen the secret movies, so I'd written it. Mhm. And I just got an assignment, and we have billed exactly the amount that I'd written. Oh, awesome. Awesome. Very nice. Wonderful. Amazing, Taru. Yeah. That was, and it was just today that I realized this. So I was just very grateful for that. Okay. Excellent. Excellent. Thank you so much. It's Thank I'm you. just Hmm. thank you. Yeah. You are all in my gratitude for a lot of days. Thank you. Thank you so much. Thank you. So Dharni is here, and I will tell you, when we come to it, I will share a few things about, many of us अपना भी बताएंगे, दूसरों का भी बताएंगे कि हाँ ये जो ये चक आपको हुई थी ना, ये इसको भी हुई थी, बट आप देखो ये तो अभी 5-6 सेशंस कर रही है मेरे संग, या और भी पहले से दूसरे जन के संग भी कर रही थी. तो you just keep doing what the book is telling you, okay? And it is just amazing. जैसे कैसे धरनी का 5 levels of interview clear हुआ, and she was the one who said इतना रोज लिखना पड़ेगा, ड्रेसिंग संडे को ऑफ नहीं ले सकते हैं, रिमेम्बर? ठीक है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे, एंड इट विल बी सो अमेजिंग, एंड इट इज सो नाइस. आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा टाइम क्रॉस हो गया, बट वी आर स्टिल हियर. वी कुड हैव रेड अ लिटिल मोर, ठीक है, बट आई एम कूल. आई एम हैप्पी कि हम लोग ऐसे इंटरैक्ट कर रहे हैं. या सो समवन एल्स, सी आई वांट टू टेक अ नेम, couple of names, but I will not. I want you to volunteer and share or ask as you feel. Yeah. Someone else? Masi, can I share? Yeah, please. You have to introduce yourself, your name, and where you're from, okay? Okay. And with the camera. Acha, 1 minute. Yeah, am I visible? Yes. Wow. So, since the last time we ended this magic session, I have had like a lot of magics since then to now. And one major one is I'm getting closer to my dream weight. So I was 52 kgs, and I shouldn't use the word loss. So I am now 49 kgs. So I'm very happy, and I'm like, my dream weight should be 45. So I'm just getting closer to it. And it was a mix of gratitude as well as my workout. So I'm extremely grateful for that. And I also got new earpods, which I had wanted, and many other things. So thank you. Okay, thank you. So Dhanvi is from, Pune, and this is our third session, right? So you have to tell us Yes. all this. Yeah.
Yes, okay. And she's like diligently doing gratitude. She keeps sharing, keeps writing. So wonderful. Thank you. Thank you. Priya ji, you said you take for kids as well, right? I took one session and I will take another in September end. Okay. Yeah. Oh, okay. So do let us know that time. Yeah. Okay. So it's only for kids or teenagers, teenagers, they mix. Unmarried people I take, okay? That is unmarried because unko mother-in-law, father-in-law nahi samajh mein aayega na, so it is for unmarried people. Kids, it like the youngest was I think 10 or 11 and eldest was, I did not ask the age, it was in 20s I guess. So that's it. I think it's 28. Tarini also was there. Tarini was also, Tarini ko to ek jan ne bola, you're this age, remember? Who asked you? Yeah. It was like that. Yeah. Yes. So And then they called me Didi after that. Didi after that. Yeah. So any other question? नहीं तो आप लोग प्लीज शेयर करो. कविता जी, तुलसी, तन्वी, तो अलका जी is also here and रूपाली जी and शिप्रा नहीं है ना? Okay, ठीक है. तो आप लोग जो चैत्र is there, yes, wow, and Ketki was there. Now I think she's gone. Chaya ji is gone. Khushi is here. So many of you, आप जो कर चुके हो, आप please करो, share करो, so that you inspire people, so that they stick to the practice of gratitude. Yeah. Ma'am, I want to ask you a question. Yes, Khushi. Ma'am, so basically in the vision boards, can I just put a picture of a map and make a red dot on the countries or cities that I want to visit? Because then like that I have to put a lot of photos. I mean, is that possible? नहीं lot of it. See, अच्छा ये तो अभी थोड़ा सा ऐसा question है खुशी. I think let's ask these questions, when the chapter starts. Okay, अभी पूछेंगे तो people, will get a little this thing, but I will tell you once we stop the recording कि इसको क्या करना है answer. Okay. Yeah. Not such questions. Questions related to today's reading. Okay, not future का question, but like future chapter के questions. Okay. Very hi, Chaitra this side. Yeah, hi Chaitra, how are you? Hi, I'm good. Yeah. Good to see you. Yeah, same here. Yeah. मुझे पूछना था कि अब डायरी नया बनाना है क्या? पुराना कैन कंटिन्यू? पुराना कैन जिनका ग्रैटिट्यूड का आप पहले से ही डायरी चल रहा है, you have to continue with that. It's like, see, I am on, मेरा fairly new था, तो मेरा जो पेजेस है उसमें यहीं से कंटिन्यू करके, अभी तो दिख नहीं रहा है ना, I guess. नहीं है ना, but I will continue with this only. Those who are new in this journey, new in the session, they will make a new fresh diary. I said जिसमें हिसाब किताब किया हुआ वैसा नहीं बना लेना है आपको, ठीक है? A new diary for writing your blessings and gratitude or whatever this book is telling us to do. Okay? Okay. Thank you. Hi, Priya. Hi, Rupali. How are you? Okay, I would like to tell all the new members of this group that this journey is really, really amazing. Actually, today my internet connection is a little challenging, so I've come back to the phone. But I would like to tell everybody that the different chapters that we are going to cover, like family, health, money, and relationships, different relationships. I have written gratitude for everything, and I have experienced a lot of changes, positive changes, especially when it comes to money, children, relationship. So as we go ahead, we'll share lots and lots of experiences. So our previous experiences as well. Yes. So that everybody will get to know much more. Yes. Okay. And thank you for the guidance. आपको सब जन, like किसी का कुछ question होता है ना, जैसे अभी खुशी का था, तो वैसे ही chapter से जो questions होते हैं ना, all of us pitch in. That is why it has to be an interactive session. कि कभी मेरे को कोई positive word आएगा, कभी किसी और को कोई positive word आएगा. Like we are so many of us. तो कितने सारे हम लोग को, वो ideas we exchange. It is like amazing. So thank you, Rupali. Thank you so much. Yeah. Yes. Yes. So I'm happy to see Jyoti ji, you are back. I'm happy. आप पिछले सेशन में आते जाते जा रहे थे, तो like today I'm happy to see you from here, from this day itself. Thank you. Yeah, hopefully I get into all the classes, all the sessions this time.
Yes. It's wonderful, actually. Yeah. Thank you. And Casey, how are you? Yeah, I'm doing good. Good. How are you? I'm great. Yes, so happy to see you and ready for the D-Day, huh? Yes. Yes, I'm like a time bomb, ticking time bomb now. There is lots of blessings and magic dust on you. Okay. Yes. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So should we call it a night? And हर दिन इतना time नहीं लगता हम लोग को. Okay. We'll try and wind up within 1 hour to 1 hour 15 minutes. ठीक है? Yeah. Okay. So good night and see you guys tomorrow. Yeah. Good night. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good night. Thank you so much, Priya ma'am.